Hello, good afternoon, everyone. Am I audible to all? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? Okay. Okay, great. So good afternoon. Chalo. So let's start, and this will be most probably the last class of our ethics paper. Most probably, अगर कुछ बच जाएगा remaining, then we will discuss tomorrow. Otherwise, most probably this will be the last class. Right? So we were discussing about the probity in governance, right? इस चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, प्रोबिटी के बारे में. सो कोई कंफ्यूजन है किसी को, कोई डाउट है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर थिंग? चलो ओके. सो स्टार्ट करते हैं. ओके देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, that probity we have already discussed that probity is about what? Probity basically talks about the procedure. Okay, ये procedure के बारे में बात करता है. That for example, suppose that this is what, this is DM. DM means decision making. तो अब देखो डिसीजन मेकिंग में क्या क्या होना चाहिए. इन द डिसीजन मेकिंग देयर शुड बी प्रोबिटी. तो डिसीजन मेकिंग, करेक्ट डिसीजन लेने के लिए, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज ऑल्सो रिलेटेड टू द गवर्नेंस, है ना. तो करेक्ट डिसीजन लेने में एक प्रोसेस क्या होना चाहिए? प्रोबिटी शुड बी द वन प्रोसीजर. इंटीग्रिटी हैज टू बी देयर, राइट. सो दिस इज द थिंग, ऑनेस्टी हैज टू बी देयर, राइट. तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग लेने में हेल्पफुल होती है. ओके, so probity is simply, it is a kind of process, it is a kind of procedure which helps in taking the right decision and which is uncorruptible, जो uncorruptible है. ओके, so ये पर्टिकुलर चीजें कहलाती है. so probity basically is not concerned about the outcome, rather it is much more interested with respect to, you know, the process, the way, ways, तरीका के बारे में ये रिस्पॉन्सिबल है. ओके, और सिर्फ उसी चीज के बारे में बात करता है, राइट. सो दिस इज अबाउट द प्रोबिटी. सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल. सबको समझ में आया होगा ये पर्टिकुलर चीजें. यस दीपक, यू वांट टू से समथिंग? सर आई वांट टू आस्क समथिंग. या प्लीज गो अहेड. Sir, there might be a certain situations where a bureaucrat has to follow the whims of a corrupt politician. So then how the probity will ensure incorruptibility if the very order of the top executive? Okay, yeah. See, so for that situation na, we have discussed about the emotional intelligence, right? So there you simply try to use the tool related to the emotional intelligence, whatever things that we have discussed related to emotional intelligence. Okay, because unless and until if you are not using EI as well as your aptitude in sync with attitude, that will be very difficult. Okay, so to ensure the probity in governance, you have to ensure that you are good, you have good emotional intelligence. ठीक है, so emotional intelligence के use को tool करो and you will be able to solve the crisis. All right Deepak, so emotional intelligence is the tool. So that's why we have discussed about the emotional intelligence in detail. Okay, that is very important, बहुत ही important है वो हमारा. All right, so ये particular चीजें हैं probity के बारे में. अब quickly हम discuss करते हैं that what are the importance of probity in governance. इसका इंपॉर्टेंस क्या है गवर्नेंस में. ऑलराइट, देखो जस्ट अ मिनट.
So first of all thing is that how you will ensure, okay, that the service that you are doing. Yesterday we have discussed about the public service, right? इसके बारे में हमने कल डिस्कस करा है. So how you will ensure that the service that you are doing, the public service that you are doing, is ethically strong, is ethically sound? Will you be ensure that? No, you won't be able to ensure that this is the thing. Okay, एक glass पानी दे दो. So you won't be able to ensure that, right? So this is the thing. So for that you need to have the strong moral principle. और इन मोरल प्रिंसिपल्स में आएंगे क्या क्या? वही घिसी पिटी सी बातें जो हम डेली डिस्कस करते हैं, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ठीक है, यही सारी चीजें तो आती है प्रोबिटी में भी, राइट? सो दिस इज द थिंग. So probity in governance is you know, it is the prerequisite for effective and efficient governance. Okay, so without probity, without remaining uncorruptible, because see the thing is what, गांधी जी जो है हमारे, ठीक है, तो गांधी जी के लालच में नहीं आना है, पिंक वाले गांधी जी के लालच में, ठीक है. सो उनसे बच करके रहना, थोड़ा नॉन करप्टेबल होना चाहिए नेचर, ठीक है. सो नहीं तो पिंक वाले गांधी जी के चक्कर में बहुत लोग चले जाते हैं लंबे लंबे टाइम के लिए. अच्छा, ग्रीन वाले कुछ नहीं चलेंगे फ्रेंड्स, कोई कलर नहीं चलेगा, ठीक है. वहां पे कलर ब्लाइंडनेस होना चाहिए आपके पास, ठीक है. आपको सिर्फ एक ही चीज दिखना चाहिए, दैट इज सर्विस. हाँ बिल्कुल, शाहिद का एकदम सही जवाब है, पिंक के चक्कर में ब्लैक हो जाओगे, ठीक है. दिस इज द परफेक्ट रिप्लाई. ओके, सो this is the thing. Okay, so वो uncorruptible. So probity is basically, एक बस माइंड में बिठा लो, probity is nothing but it is a process where you have to remain uncorruptible. एक प्रोसेस के बारे में बात करता है. फाइनली याद रखना, probity never ever talks about the end result. End result की ये बात नहीं करता. It simply talks about the procedure. It simply talks about the process, the way. ठीक है. So this is the thing. So effective और efficient governance के लिए क्या इस चीज की रिक्वायरमेंट है? For that, okay, so ये it is concerned with the procedures, process and systems rather than outcomes. हाँ, यहाँ पे दे रखा है ना, तो इन सारी चीजों के बारे में ही बात करता है. So probity in governance helps in building the legitimacy. अब एक बात बताओ, आप लोग एक बात बताना बस मुझे, ठीक है. You are the DM, आप सब लोग को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. अब आप अगर अपने काम को विथ फुल सिंसियरिटी, प्रोबिटी के साथ अगर आप अपने काम को कर रहे हो, तो बाकी की जो जनता होगी वो क्या बोलेगी? यार देखो ना, कितना बढ़िया गवर्नमेंट है हमारा, ठीक है, कितना बढ़िया डीएम साहब है हमारे. तो उनका फेथ जो है स्टेट पे स्ट्रांग होगा या नहीं होगा? बताना जरा. आप अगर बढ़िया तरीके से काम करोगे तो उनका फेथ स्ट्रांग होगा सिस्टम पे, गवर्नमेंट पे, राइट? सो दिस इज आल्सो, प्रोबिटी इज आल्सो अ ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर, ठीक है. इट डेवलप्स द ट्रस्ट अमंग द कॉमन मासेस, ठीक है. लोगों, आम जनता के बीच में ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट को डेवलप करता है, ठीक है. सो दिस इज द थिंग. सो इट इज अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट. सो हमारा इंस्टीट्यूशन पे, स्टेट पे, गवर्नमेंट पे प्रोबिटी आल्सो हेल्प. सो इसलिए बोला जाता है ना, ब्यूरोक्रेट्स के डिसीजन पे, ब्यूरोक्रेट्स के फंक्शनिंग पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है स्टेट की इंटीग्रिटी. ओके, national integrity depends on the functioning of the bureaucrats. Why? Because the thing is that if you are corrupt, if you are unethical, it means what? The people, the common masses will lose the significance and will lose the faith in their own government. And if you are, you know, UPA 2 गवर्नमेंट के साथ क्या हुआ था? UPA 2 गवर्नमेंट के साथ तो यही हुआ था ना. क्यों लोगों ने गवर्नमेंट से अपना विश्वास खो दिया था? Why people lost their faith, lost their trust? Because there was high level of corruption, right? So because of the high level of corruption during the tenure of UPA 2, this is the reason that the people lost the faith. और अगर मान लो यही कंटिन्यूअसली रहता तो फिर क्या होता? फिर आता सिविल वॉर, है ना. तो देख रहे हो, एक ब्यूरोक्रेट्स कितना लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को इंपैक्ट करता है और लॉन्ग टर्म पे चीजों को मैनिपुलेट कर सकता है, और इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा सीवियर होगा, कितना ज्यादा बड़ा होगा, यू जस्ट कैन इमेजिन, right? So this is the thing. So you have to ensure
the probity, otherwise the India will break into apart. Okay, so ये पर्टिकुलर चीजें हैं, इसलिए आपको नोट में जो गांधी जी रहते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखना है। सरकार जितना दे, गवर्नमेंट जितना देती है काफी बढ़िया। डू यू नो वन थिंग, गवर्नमेंट का एक आईएएस ऑफिसर पे जो छोटे पोस्ट जो होते हैं, सबसे पहला सबसे छोटा पोस्ट कौन सा है आईएएस का? एसडीएम का। सो इन एवरी मंथ गवर्नमेंट स्पेंड अराउंड 2.5 लाख टू 3 लाख, ठीक है, 2.5 से 3 लाख के बीच में एक एसडीएम पे गवर्नमेंट का पर मंथ का खर्चा, एक एसडीएम पे। मतलब जब आप एसडीएम बनोगे तो सिर्फ आप पे गवर्नमेंट का पर मंथ का जो खर्चा होगा, पर मंथ का जो एक्सपेंडिचर होगा, दैट विल बी अराउंड 2.5 लाख टू 3 लाख। जस्ट इमेजिन, ठीक है, दिस इज द थिंग। तो भले सैलरी दिखने में कम लगती है गवर्नमेंट की, बट जो फैसिलिटीज जो दिए जाते हैं आईएएस ऑफिसर्स को, आईपीएस ऑफिसर्स को, दैट इज ह्यूज, दैट यू कैनॉट मिस। तो प्रिंस, आपको जो मिलेगा 60 और 70, वो टोटल का टोटल आपने सेव होना है। ना आपको घर का देखना है, ना आपको गाड़ी का देखना है, ना आपको अपने हेल्थ का देखना है, ना आपको अपने बच्चों का देखना है, ना आपको अपने फैमिली का देखना है। सबको तो अब गवर्नमेंट देख रही है ना, ठीक है। तो 60 तो दे रही है कि जाओ ऐश कर लो, इतना भी तो दे रही है, बहुत दे रही है, जाओ ऐश करो, जी लो अपनी जिंदगी, राइट। सो दिस इज द थिंग ना। बट द थिंग इज व्हाट, 2.5 इसलिए तो है ना, 2.5 टू 3 लाख पर मंथ ऑन सिंपली वन एसडीएम, वन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर। सिर्फ एक महीने का इतना खर्चा है। और अगर फॉरेन सर्विस में जाते हो तब तो भूल जाओ, तब तो फिर कंपैरिजन ही नहीं है कुछ, ठीक है। और वन डिप्लोमेट की तो, एक डिप्लोमेट की तो सिर्फ सैलरी होती है मंथली 4 लाख मिनिमम, 4 to 5 लाख, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ना, फॉरेन सर्विस इज द इंडियाज हाईएस्ट पेइंग जॉब। ऑलराइट, सो अगर आप ही ट्रस्ट, सो दिस इज द थिंग, सो दैट्स व्हाई the onus is very much more on the bureaucrats, because if the bureaucrats will become corrupt, then definitely the entire country, the entire people is going to lose the significance and lose to faith in India, ठीक है। इंडिया पर से तो उनका भरोसा ही उठ जाएगा, फिर क्या होगा, राइट। सो इसलिए बोला जाता है ना, चाणक्य ने भी बोल करके गए, चाणक्य की फिलॉसफी भी हम देखेंगे कि अगर ब्यूरोक्रेट्स हमारे करप्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो फिर इस देश को टूटने से कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सो ये लेजिटिमेसी को स्ट्रेंथन करता है। इट प्रमोट्स द फेयरनेस, प्रोबिटी हेल्प्स इन प्रमोटिंग द फेयरनेस इन द सिस्टम इटसेल्फ, राइट। हमारे सिस्टम में ये फेयरनेस को इंश्योर करता है प्रोबिटी, ओके। इट द प्रोबिटी हेल्प्स इन चेकिंग द मिसयूज ऑफ द पावर। बहुत बार क्या होगा कि आप बन गए आईएएस ऑफिसर, ठीक है, आईएएस बन गए, ठीक। इसके बाद क्या करोगे आप, आपके पास क्या आ गया, भर भर के आ गया आपके पास पावर, ठीक। अब पावर को करोगे, अच्छा चलो इस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे कॉलेज लाइफ में इतना ज्यादा मेरे को टॉर्चर करा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीजें, ये फीलिंग आएगी आपके मन में कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने मुझे हद से ज्यादा टॉर्चर करा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इतना ज्यादा टॉर्चर करा है इसने, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर फीलिंग आएगी तो आप क्या सोचोगे, अब तो आपके पास पावर है, अब क्या करें, चलो अब उठा लेते हैं इस पर्सन को और दिखाते हैं अपने पावर का दम, ठीक है। सो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द मिसयूज ऑफ पावर, ओके। And to my mind, I have added one thing in it, that in with respect to the misuse of power, इसमें और भी चीजें होती है। For example, suppose that you have the authority, you have the power to help the minority or to help the poor sections of our society. जो भी पुअर सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, जो भी हमारे पुअर सेक्शंस हैं, उनको हेल्प करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द थिंग। पुअर सेक्शन को हमें सपोर्ट करना है, ठीक है। एंड इफ यू रिफ्यूज टू सपोर्ट द पुअर सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द अब्यूज ऑफ पावर। वहां पे आप अपने पावर का अब्यूज कर रहे हो, अपने पावर को, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग एट ऑल, because the reason for which you have got the power, the reason for which you have received the power, you are simply not using that. आप simply उसको use नहीं कर पा रहे हो, right? So this is the thing, okay. So you have to use the power, okay,
there you have to ensure that probity has to be there. और अगर आप में probity आएगी, if you will have the probity in within you guys, then definitely you know ये सारी चीजें तो automatically है, इनके है ना, ये तो होना ही होना है. This is for sure that you will be getting all those things, right? तो ये सारी चीजें हैं probity में. देखते हैं कुछ related to theory. देखो कुछ थ्योरीज देखते हैं. नेशनल कमीशन NCRWC, ठीक है, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ये आया था, एक कमीशन था, रिटायर्ड जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड करा है. ओके, HC मुखर्जी करके एक जज है कोई, मतलब थे पहले, उन्होंने रिकमेंड करा था that this is the probity and this is how you have to ensure the probity. तो उनका अच्छा खासा रिकमेंडेशन है. तो NCRWC का है रिकमेंडेशन, वो रिकमेंडेशन देखते हैं और वो देखते हैं कि क्या बोल रहा है उन्होंने probity से रिलेटेड. ओके, he says that, and I quote, that particular data, an important requisite for ensuring probity in governance is absence of corruption. Probity ensure करने का prerequisite क्या? What is the prerequisite? So prerequisite to ensure the probity is that you are uncorruptible. ठीक है, कोई भी आ जाए, क्रिप्टो, गांधी जी भी क्यों ना आ जाए, क्रिप्टो करेंसी भी क्यों ना आ जाए, ठीक है, कोई भी क्यों ना आ जाए, यू आर नॉन करप्टेबल, आपको कोई हिला नहीं सकता. ठीक है, सो ये पर्टिकुलर चीज है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है. What are the other requirements related to the probity? और पता है ये सारे पॉइंट्स ना आपको याद होने चाहिए, बिकॉज वी विल सी, हम देखेंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी हम देखेंगे कल, तो उसमें हम देखेंगे यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछ रखा है कि probity in governance क्या है. ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ना आपने मेंशन करने हैं अपने इसमें, अपने आंसर शीट में, बिकॉज विदाउट मेंशनिंग और विदाउट हाईलाइटिंग दीज पॉइंट्स दिस वोंट बी पॉसिबल. ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को हाईलाइट किए बिना ना ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होगा. सो यू हैव टू एंश्योर दैट. व्हाट आर द अदर रिक्वायरमेंट्स? द अदर रिक्वायरमेंट्स आर इफेक्टिव लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, जो हमारे पब्लिक लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, एज वेल एज सो दैट विल बी आल्सो, it is important for our public life, at the same time it is also important to rule the public. ठीक है, to rule over the public, ये भी एक particularly चीजें हमें करना है, right? So this is the important thing related to it. Okay, so proper, fair and effective enforcement of law is a facet of discipline. So you are disciplined only when you are, you know, fair and effectively enforcing the laws, when you are, you know, with proper care and with you know, whatever procedure, whatever thing that the Constitution of India or the government, our legislatures are making, so you are simply trying to ensure that. So when you are effectively applying those things, definitely you will be able to inculcate or you will be able to ensure discipline. ठीक है, आप ये फिर effectively ensure कर पाओगे. So discipline implies what? Discipline is very crucial and that is very you know, important in our public life and it ensures the our morality. Discipline हम तभी हो पाएंगे जब हमारी morality strong होगी. एक simple सा मैं आपको बात बताता हूँ, that you guys are preparing for the civil services. आज का टॉपिक हमारा ऐसे ही सीरियस वाला रहेगा थोड़ा, ठीक है. सो देखो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप सब, ओके. यूपीएससी की तैयारी में व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सो योर मोरालिटी शुड बी हाई. जोश के साथ साथ मोरालिटी भी हाई रहनी चाहिए आपकी. ओके, सो इफ योर मोरालिटी इज हाई, राइट, देन यू विल नेवर एवर एंगेज इन द करप्ट प्रैक्टिसेस. आप तो कभी उन सारी चीजों में एंगेज नहीं हो पाओगे. You will be ethically sound always, and ये सारी चीजें आप, you are punctual, okay, you are accountable, you are ethically sound, you are non-corruptible, it will ensure. और ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाएगी? ये सारी चीजें मिलकर के बनाएगी आपको एक डिसिप्लिन्ड पर्सन. तो इसलिए आप किसी का भी कुछ भी सुन लो, एक चीज सब में कॉमन है, आप सारे ब्यूरोक्रेट्स जितने भी अभी तक लोग सेलेक्ट हुए हैं, सब में वन थिंग इज कॉमन, दैट दे आर डिसिप्लिन्ड.
Without discipline, you won't be able to achieve anything in your life. डिसिप्लिन के बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो अपने लाइफ में. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ओके, सो ये पर्टिकुलर चीजें ध्यान में रखने वाली बात है रिलेटेड टू प्रोबिटी इन गवर्नेंस. यहाँ पे सेम लाइन रिपीट हो गया था मेरे से, फ्लो में मैंने फिर से सेम लाइन टाइप कर दिया था. ओके, तो इग्नोर दिस थिंग. आपको नोट्स मिल गया होगा आई गेस, तो उसमें इस चीज को इग्नोर कर देना. ओके, सेम थिंग इज रिटन देयर. अब देखो, एक गुरनाल मिल्डर करके एक थिंकर है. अच्छा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किस किस को हम कहते हैं पता है? ये जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, तो किसको कहा जाता है? ओनली नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, डेनमार्क. वेरी गुड, करेक्ट. तो देखो, जो भी हमारे स्कैंडिनेवियन कंट्री मींस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के जो हमारे एक थिंकर है गुरनाल मिल्डर, वाज अ स्कैंडिनेवियन थिंकर. इन्होंने एक बुक लिखी नेम्ड एज एशियन ड्रामा. ठीक है, एशियन ड्रामा को के में उन्होंने बताया है दैट इंडिया क्या है? इंडिया इज अ सॉफ्ट सोसाइटी. सॉफ्ट सोसाइटी का मतलब क्या? ये बेसिकली गुरनाल मिल्डर इज ट्राइंग टू क्रिटिसाइज इंडिया. ठीक है, इंडिया को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत. ओके, हियर दे से गुरनाल मिल्डर से दैट इंडिया इज अ सॉफ्ट सोसाइटी व्हिच मींस इंडिया लैक्स द प्रोग्रेस, इंडिया लैक्स द डेवलपमेंट. यहाँ पे हम अपने प्रोग्रेस के लिए वी आर नॉट डेवलपिंग द लॉज रिलेटेड टू आवर प्रोग्रेस और रिलेटेड टू आवर डेवलपमेंट. ओके, वी हैव द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल. हमारा क्या पॉलिटिकल विल नहीं है. Our will is not strong, okay, to implement the existing laws. अगर आप एक चीज देखोगे तो इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है हमारे कंट्री में. Are we able to effectively implement them? क्या हम उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं? Is it possible? No, we are not doing it. So whatever thing that Gunnar Milner was highlighting, that is absolutely correct. Okay, so there is lack of political will or administrative will. There is a lack of discipline at all levels. ठीक है, lack of discipline है सारे levels पे. Okay, including the administration and structures of governance. Okay, administrative level पे और governance के level पे there is a lack of discipline. Just a minute guys. समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है प्रोबिटी के बारे में. और देखो, ये सारे पॉइंट्स ना आपको लिखने हैं. दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं. और एज इट इज आप कॉपी पेस्ट कर देना, कंट्रोल सी कंट्रोल बी अपने एग्जाम में. सो दिस इज द थिंग. महबूब उल हक करके एक इकोनॉमिस्ट है. ओके, एक्चुअली दिस इज द थिंग, इज फ्रॉम पाकिस्तान. काफी फेमस है, अमर्त्य सेन के साथ थे. राइट, यस, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान. अमर्त्य सेन के साथ थे ये महबूब उल हक. ओके, ही सेज दैट मतलब करप्शन हर जगह पे है, सभी जगह पे है. लेकिन बट द थिंग इज व्हाट साउथ एशिया में, इन द साउथ एशियन कंट्रीज करप्शन इज एट इट्स पीक. एकदम हाई लेवल पे है, करप्शन बहुत ज्यादा है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ करप्शन द पुअर पीपल दे आर वेरी हेल्पलेस एंड दे आर बीइंग सप्रेस्ड. व्हाई दे आर बीइंग सप्रेस्ड? इट इज बिकॉज ऑफ द करप्शन. करप्शन की वजह से इन लोगों को बहुत ज्यादा सप्रेस किया जा रहा है. ठीक है, दिस इज व्हाट द गुनार मिल्डर इज ट्राइंग टू हाईलाइट. गुनार मिल्डर इज ट्राइंग टू से, यही पर्टिकुलर चीजें बोल रहा है गुनार मिल्डर इसके बारे में. ओके, सो दिस इज द थिंग. देन लेट्स डिस्कस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोबिटी. कि हमारे प्रोबिटी के क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं. तो याद है गाइज, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड और द नोलन कमेटी. नोलन कमेटी कहां पे आई थी? ब्रिटेन में आई थी ना. ब्रिटेन की कमेटी थी, एक बनी थी, याद है? हमने डिस्कस करा था. डू यू रिमेंबर दैट? याद है या नहीं? अब जल्दी बताओ, क्विकली बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में. याद है?
चलो वेरी गुड, ठीक है। तो नोलन कमेटी थे, ब्रिटेन में आई थी हमारी, ये इन्होंने क्या बोला था, सेल्फलेसनेस के बारे में बोला था, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर प्रोबेटी, है ना, ये प्रोबेटी का भी पार्ट है हमारे, दैट्स व्हाई हियर आल्सो आई हैव मेंशन्ड द थिंग, बट यहाँ पे मैंने आपको डिटेल नहीं दिया है क्योंकि मैं पहले ही आपको डिटेल दे चुका हूँ, डिटेल में। सेल्फलेसनेस का मतलब हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, अकाउंटेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, इंटीग्रिटी हो चुकी है, ऑब्जेक्टिविटी, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, ऑनेस्टी, ऑल दोस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस सेक्शंस, ठीक है। सो दीज आर दी 7 प्रिंसिपल्स, नोलन कमिटी बेसिकली गेव द 7 प्रिंसिपल्स, okay, so these 7 principles will help in ensuring the probity in governance, right? और इसमें आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो आपने क्या करना है, इस सेल्फलेसनेस के बारे में एक लाइन लिख देना है, मैं ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइड कर चुका हूं, आपको एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इन सारे पॉइंट्स जितने भी 7 प्रिंसिपल्स हैं, ओके, इन 7 प्रिंसिपल्स के बारे में एक लाइन लिख दोगे आपका नोलन कमेटी के रिकमेंडेशन के साथ, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, ठीक है, काफी बढ़िया मिल जाएगा आपका। व्हाट आर द अदर प्रिंसिपल्स? अनदर प्रिंसिपल इज कॉन्फिडेंशियलिटी। अब देखो कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है, यू विल बी, सपोज दैट यू आर द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एक्स, है ना, एक्स डिस्ट्रिक्ट का आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो, बहुत बड़ी पोस्ट है, ओके। सो अब देखो यू आर द एसपी और यहां पे आपके पास कोई काफी सेंसिटिव केस आया है, ओके, एंड यू आर श्योर that if you will do public, if you will make public that particular sensitive case, then what will happen, there will be chaos in the society, society में chaos हो जाएगा, right? So this is the thing, so the public servant, the public officials, they are required to maintain the confidentiality in the society. So without maintaining confidentiality in the society, that would be very much difficult, okay, to ensure the right thing or the probity, ठीक है। without confidentiality, probity won't be able, you won't be able to ensure the the probity. So confidentiality is the important, is a must thing. So SP साहब को क्या होना चाहिए, sensitive होना चाहिए बहुत ज्यादा, right? Second one is leadership. अब देखो, as a DM of X district, आपको, you are the leader for them, आप ही तो हो उनके लिए ना लीडर, you are the each and everything for the for the district magistrate, right? So without you, सारी चीजें कहां से, सारी चीजें आप पे शुरू और सारी बातें आप पे खत्म, each and everything, सारी चीजें आपसे शुरू होती है, सारी चीजें आप पे खत्म होती है, and if you will not set the example, then what will happen? अगर आपने एग्जाम्पल सेट नहीं करा, then just imagine that what will happen, क्या हो जाएगा फिर, दुनिया तो फिर इधर से उधर की पलट जाएगी, right? So this is the thing, so you have to set the example, so leadership has to be there. Managing conflict of interest is also important for to ensure the probity. For example, क्या होगा, बहुत लोग आएंगे आपके पास, there will be many people, there will be many people who will come and they will say that आप ये काम कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना, द चीफ मिनिस्टर, और दीपक ने भी अभी क्वेश्चन पूछा था, that the son of the chief minister will come and will ask you to do something, or any minister will come and ask you to do something which is not in the interest and which is not just for the position which you are holding, ठीक है, आप जो पोजीशन अभी होल्ड कर रहे हो उस पोजीशन के लायक that particular thing is not present, so what you will do in that particular situation, so there will be a conflict of interest, so उस conflict of interest को आपने maintain करना है, ठीक है, बना के चलना है आपको उस conflict of interest, means you cannot go for it, आप conflict of interest नहीं ला सकते हो। So this is the scenario, ये पर्टिकुलर सिनेरियो है, ये पर्टिकुलर चीजें हैं, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोबेटी, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, समझ में आया सबको, क्विकली बताओ मुझे। दिस इज द लास्ट टॉपिक गाइस एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां तक क्लियर है सबका, चलो वेरी गुड।
Manvi, you are here after a long time in this class. All good? Just a minute. Chalo. Objective. Yes, yes, Manvi. Yes, sir. You are here after a long time in this class. Yes, sir. चलो फिर बाकी का लेक्चर देख लिया पूरा ना? Yes, sir. देख लिया. I'm not so that's why. अच्छा तो क्लियर है चीजें? Yes, sir. चलो ठीक है. So objectives, okay? Objective क्या है प्रोबिटी का? So first objective is to ensure the accountability, transparency and integrity. Okay? ये तीनों चीज ना आप याद रख लो ATI करके, ठीक है? ATI करके याद रख लो, या फिर जैसे भी आपने याद रखना है वैसे भी आप याद कर सकते हो. TIA करके याद रख सकते हो या फिर TIA, है ना? So कुछ भी कोई भी निमोनिक्स बना करके आप याद रख सकते हो. ओके. Accountability, object, what is the objective or what are the objectives of probity? First one is to ensure accountability, transparency and integrity in public service. This is the first thing. What is the second thing? To ensure compliance in all process. इसका मतलब क्या है? Suppose करो if any minister comes to you or give you any direction, कोई भी मिनिस्टर आते हैं और कोई भी डायरेक्शन आपको देते हैं, राइट? सो यू आर सपोज टू फॉलो दैट दोज डायरेक्शंस. आपको तो वो सारे डायरेक्शंस आपने फॉलो करने ही करने हैं, right? Because the thing is what they are the public servant. So if you will not follow the direction of those ministers or any the authority, then what will happen? It means that you are not caring for the law, you are not giving respect to the public, the people's representatives, right? So this is the thing. So ये particular चीजें आपने करनी है, that you have to ensure the compliance, you have to follow the rules and regulations, the laws, whatever law which is made, you are supposed to follow that. Otherwise there will be no objective, otherwise there will be no means for probity, right? So this is the thing. Next thing is that you have to preserve the public faith and confidence in the government processes. अब एक बात बताओ, स्ट्राइक कोई भी क्यों होता है? अब एक बात बताओ, फार्मर्स जो रोड पे बैठे हुए हैं, ठीक है, आई नो अब नाउ इट इज पॉलिटिसाइज्ड, दैट आल्सो आई एम श्योर, ये पॉलिटिसाइज्ड अब हो गया है, बट इनिशियली इट वाज नॉट पॉलिटिसाइज्ड, राइट? सो इस पे आप बहुत सारे थेसिस लिख सकते हो, आप बेसिकली डिस्कस कर सकते हो पॉलिटी के क्लास में, सर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो इन सारी चीजों से रिलेटेड. Okay, so see the thing is what, if you will not ensure the good governance or if you will not ensure the honesty, integrity in your department or in your functioning, then why people should trust the government? You are the messenger ना. कल ही हमने देखा है पब्लिक सर्विस क्या, सर्वेंट क्या होते हैं? पब्लिक सर्वेंट्स आर लाइक नारद जी, नारद मुनि याद है ना? तो हमारे जो पब्लिक सर्वेंट हैं, दे आर नथिंग बट द नारद मुनि, ठीक है? इधर की दे ब्रिज द गैप, ठीक है? वो ये जो गैप है लोगों के बीच में, आम पब्लिक के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, नारायण नारायण, राइट, ठीक है? ये जो गैप है ना, इस गैप को ब्रिज करने का काम करते हैं. नारद जी भी यही करते हैं ना, आम इंसान के बीच में और भगवान के बीच में जो गैप था उसको ब्रिज करते थे. तो ब्यूरोक्रेट्स क्या है? ब्यूरोक्रेट्स आर दी मॉडर्न डे नारद जी, ठीक है? उसको ब्रिज करने की कोशिश करते हैं गैप को, राइट? सो अगर एक बात बताओ, नारद जी ने अगर अपना काम खराब कर दिया तो जो इंसान है क्या वो भगवान पे ट्रस्ट करेंगे? नहीं करेंगे. तो मॉडर्न डे भगवान कौन है? मॉडर्न डे भगवान आर लाइक द पॉलिटिशियंस, दे आर द माई बाप, ओके? एंड हु आर द मैसेंजर? सो मैसेंजर्स आर यू पीपल. तो आपने अगर बीच में काम गड़बड़ कर दिया तो हो जाएगा ना खेला खत्म, ठीक है? अब एक बात बताओ, कहीं पे कुछ भी होता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, हाथरस में इतना बड़ा क्राइम हो गया, किसी ने वहां के एसपी को कुछ बोला है क्या? किसी ने वहां के डीएम पे कोई क्वेश्चन मार्क लगाया है क्या? नहीं. सब किसके पीछे पड़े थे? योगी आदित्यनाथ के पीछे. पढ़ना भी चाहिए, है ना? सो योगी आदित्यनाथ, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बिकॉज
योगी आदित्यनाथ, ही इज द चीफ मिनिस्टर एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल, ये तो रिस्पॉन्सिबल है ना, बिकॉज इन्हें तो जनता ने इलेक्ट करा ना, द पीपल हैव चूजन हिम, right, so that people will safe and secure, people will feel like that, right? So this is the scenario and this is the thing. Okay, so ये particularly चीजें ऐसी होनी चाहिए, alright? Then preserve करना है, okay, misconduct को avoid करना है, fraud को avoid करना है, corruption को avoid करना है, ठीक है? So this is also one of the objective of the proper probity. So ये सारी चीजें भी क्या है, probity के objectives हैं, क्लियर है? So डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं probity पे, डायरेक्ट आपने ऐसे ही चिपकाना है अपने आंसर शीट पे. Now see, what are the measures required? क्या क्या measures की requirement है हमारे? So the officer should avoid the conflict of interest situations and work with keeping public interest as priority, है ना? ब्यूरोक्रेट्स की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पब्लिक सर्विस, ओके, लोगों की भलाई, जनता की भलाई, द इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मासेस, ओके, कॉमन मासेस का इंटरेस्ट इज द प्राइम कंसर्न, इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव, राइट? So this is the thing, ये particularly चीजें होनी चाहिए. Second one is adherence to the principles enshrined in the Constitution of India, Code of Conduct for Services and Citizen Charter. Okay, जो भी Citizen Charter में जो हमारा दे रखा है, I hope you all are aware about the Citizen Charter now. पता है ना सबको, हमने डिस्कस करा था, लेकिन गवर्नेंस में आपको और डिटेल में बताया जाएगा. मैंने तो बस ब्रीफली बताया था ना, बट गवर्नेंस में आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, राइट? सो जो भी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ओके, राइट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स टू डीपीएसपी, ठीक है, टू प्रियम्बल टू फंडामेंटल ड्यूटीज, so each and everything, whatever thing which is mentioned in the Constitution of India, and if you are adhere to those constitution and to those provisions, okay, so that is also the thing, and this is also the way by which you will be able to ensure the probity. ये भी एक तरीका है और ये भी एक इस चीज की भी एक जरूरत है. Okay, then judicious use of RTI should be there. RTI का क्या होना चाहिए? Judicious utilization होना चाहिए, Right to Information Act का. Okay, see, RTI is very important. और आप जब पॉलिटी पर होगे तो एक चीज आप जरूर समझने की कोशिश करना, सर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं पॉलिटी, ठीक है, एक चीज आप समझने की कोशिश करना, that why there is no RTI in political parties. Political parties पे कोई RTI क्यों नहीं लग सकता है और क्यों नहीं लगता है? ओके, सो पॉलिटिकल पार्टी पढ़ते टाइम ये सारी चीजें आपको पॉलिटी में पढ़ाई ही जाएगी, बताई भी जाएगी, सो देयर यू विल गेट दैट. ओके, सो जुडिशियस यूज होना चाहिए RTI का फॉर मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन द सिस्टम, है ना? Next is integrating the government services with information technology. For example, देखो अभी हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, डीजी लॉकर का कॉन्सेप्ट है ना. We are moving from, एक चीज आप कभी नोटिस करना, if you will look at the UPSC question paper ना, you will notice that nowadays UPSC has started focusing more on science and technology. आप ये चीज नोटिस करना, UPSC ने साइंस एंड टेक पे ज्यादा फोकस कर दिया है, फोकस बढ़ा दिया, ज्यादा क्वेश्चंस आजकल पूछ रही है यूपीएससी साइंस एंड टेक से. व्हाई? मैंने आपको पहले ही बोला था, पुट व्हाई इन एवरी थिंग, इन एवरी वर्ड, सारे स्टेटमेंट पे, सारे वर्ड पे व्हाई लगाओ. यूपीएससी क्यों पूछ रही है? देयर इज अ लॉजिक, बिकॉज नाउअडेज इट इज द टाइम ऑफ, this is the fourth industrial revolution that we are facing. Fourth industrial revolution is all about the latest technology. And the government of India, this is also the core governance measure of the government, incumbent government, central government, is to go for the digital India. तो गवर्नमेंट का ही अगर मोटिव है डिजिटल इंडिया होना, right, then definitely the people, then definitely UPSC is going to ask the question, if this is the motive, if this is the objective of the government of India, है ना? So लोग तो जाएंगे ही नहीं इसके पीछे, ठीक है. सो ये पर्टिकुलर चीजें, दैट्स व्हाई यूपीएससी इज आस्किंग मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. दे हैव, यूपीएससी हैज टिल्डेड
टू आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो बिना साइंस पढ़े आज के टाइम में आपका पीटी होना, मेंस होना, दैट इज क्वाइट टफ, बहुत टफ है। एक टाइम था जब लोग साइंस पढ़े बिना काम चला लेते थे, बट नाउअडेज यू हैव टू रीड द साइंस। इसलिए देखिए होगे ना कि इंजीनियर्स ज्यादा क्यों आ रहे हैं, why engineers are getting selected nowadays, because of this is one of the reason. I'm not saying that this is the sole reason, but this is one of the reason. Okay, so गवर्नमेंट सर्विसेज को आईटी, फॉर एग्जांपल देखो हमारा आधार, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ आधार? आधार आधार पता है क्यों आया था? आधार बेसिकली आया था आफ्टर कारगिल वॉर, देयर वाज अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर आए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ यू नो द नेशनल एम्बिशियस पर्सन लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी थे, ही वाज द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो लाल कृष्ण आडवाणी ने रिकमेंड करा, इनके कमीशन ने रिकमेंड करा दैट द यू नो देयर शुड बी वन स्पेसिफिक थिंग जिसे हमें पता चले कि हमारे देश का कौन है और बाहरी क्या है, कौन है। बिकॉज सी द थिंग इज व्हाट, द कारगिल वॉर दैट वाज नॉट इनिशियली, इट वाज नॉट द इंडिया पाकिस्तान वॉर, इट वाज रिलेटेड टू द इंट्रूडर्स। पाकिस्तान वाले तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि वो इन्वॉल्व थे कारगिल में। सो इट वाज रिलेटेड टू द इंट्रूडर्स, इंट्रूडर्स आए थे। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कारगिल वॉर के बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमिटी बनी थी। ओके, पढ़ सकते हो आप प्लीज। ओके, दैट इज अ गुड एडिटोरियल, यू कैन गो फॉर इट। ओके, सो ये पर्टिकुलरली चीजें बनी थी। ओके, तो ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंड कर रहे थे कि हम क्या क्या है जो आने वाले टाइम में, इन कमिंग टाइम, ये जो प्रॉब्लम हुआ है रिलेटेड टू यू नो इंट्रूडर्स, हाउ टू सॉल्व दोस क्राइसिस, हाउ टू सॉल्व दोस चैलेंजेस, उनको कैसे टैकल किया जाए, उन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करा जाए, ठीक है, इसके सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहे थे लोग। ओके, सो ये पर्टिकुलर चीजें थी, people wanted to find out the solution. So this group of minister they recommended कि एक system होना चाहिए हमारे पास, so by using that particular system we will be able to solve the crisis, we will be able to identify that who are the native one and who all are the intruders. So this was the reason that Aadhaar was introduced, but now Aadhaar is being used in each and every format. अगर आपको कोई भी benefit चाहिए तो उसको आप use कर सकते हैं। With the help, with the support from Aadhaar, the government is providing financial inclusion, the government is providing the support, ठीक है, अब डायरेक्टली लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव बाय द वे, बाय द इनकमिंग गवर्नमेंट, अच्छा इनिशिएटिव है ये। और लॉकडाउन में, ड्यूरिंग लॉकडाउन ऑल्सो बहुत सारे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, ओके, इन द बैंक अकाउंट ऑफ द नीडी वन। So this is undoubtedly a very good move, a very good initiative by the incumbent government. All right. So ये एक particular चीज है। तो see how technology is being used in order to provide the better services. Now see, with the help of the Aadhaar, what the government is doing? Government is simply bypassing the middlemen. Middlemen हमारे bypass हो रहे हैं आधार की वजह से। Transparency is being maintained. DBT, yes, direct benefit transfer, transparency is being maintained, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना जैम ट्रिनिटी के बारे में, जनधन आधार मोबाइल, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज जैम ट्रिनिटी। ओके, दिस इज रिलेटेड टू प्रोमोटिंग गवर्नेंस, फॉर प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, तो बहुत सारी चीजें। सो जैम ट्रिनिटी इज वेरी इफेक्टिव एंड वेरी एसेंशियल टू मेंटेन द गवर्नेंस सिस्टम, smooth one as well as the transparent one. Yes sir, effective surveillance too, correct. Okay, so that is also the utility of jam trinity. So बहुत ही important चीजें। So nowadays the government is also focusing on, and the government service को इसी तरीके से transparent होना चाहिए। अभी मैं एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ। यूपी गवर्नमेंट को बार बार बोलते रहते हैं, एक यूपी का पता है, यूपी में सबसे पहले क्या होता था, यूपीपीसीएस आप लोग में से किसी ने भरा है? यूपीपीसीएस का फॉर्म आया हुआ था, कौन कौन हो जो दे रहे हो यूपीपीसीएस? प्रिंस आप दे रहे हो, और है कोई?
अब देखो क्या होता था पहले, यूपीपीसीएस में ना एक बहुत बढ़िया पोस्ट आती थी टीचर्स से रिलेटेड, ओके, दोज हु विल बी द हेड ऑफ द टीचर्स, जो डिसाइड करेंगे कि ट्रांसफर वगैरह, टीचर्स के ट्रांसफर वगैरह, प्रमोशन वगैरह, दैट पर्टिकुलर पर्सन और कंसर्न डिपार्टमेंट विल बी डिसाइडिंग। ये यूपीपीसीएस के थ्रू ही सिलेक्शन होता था। सो दिस वाज द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट ऑफ द यूपी once upon a time. It used to be the most corrupt department of Uttar Pradesh, ठीक है। Obviously after PWD के बाद ये जो डिपार्टमेंट था ये सबसे ज्यादा करप्ट हुआ करता था, ठीक है, क्योंकि लाखों लाखों रुपए लेते थे ऑफिसर्स फॉर द ट्रांसफर। अब यूपी गवर्नमेंट ने क्या करा है, यूपी गवर्नमेंट ने इस चीज को कर दिया है डिजिटलाइज, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट ने कर दिया, सेट कर दिया है पैरामीटर, एक गाइडलाइन सेट कर दिया है यूपी गवर्नमेंट ने। दिस इज द थिंग दैट, ये मैं आपको ये स्टोरी से बता रहा हूं सो दैट इन द ट्रांसपेरेंसी यू कैन गिव दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ये यूपी गवर्नमेंट का एग्जांपल आप दे देना ट्रांसपेरेंसी में। देखो तो यूपी गवर्नमेंट ने गाइडलाइन सेट कर दिया, ओके, प्रॉपर गाइडलाइंस दैट ट्रांसफर, प्रमोशन और एनीथिंग उन्हीं लोग का हो सकता है, दोज हु विल फुलफिल ऑन दोज पर्टिकुलर गाइडलाइंस, दोज रिक्वायरमेंट। कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे इतने साल सर्विस में होना चाहिए, इसके लिए ये पर्टिकुलर चीजें हैं, इतना स्किल होना चाहिए, दिस शुड बी द बेसिक जॉब education qualification. So education qualification is there, experience is there, okay, then behavior is also there, okay, their ethical conduct is also there. So these are the couple of guidelines, और इस guidelines के basis पे ना points दिए जाते हैं। Based on these guidelines, points are given to each and everyone, और हर साल वो point बढ़ते रहता है, ठीक है। तो सपोज करो अगर चैतन्य वहां पे टीचर है, यूपी में टीचर है, चैतन्य ट्रांसफर लेना चाहते हैं फ्रॉम नोएडा टू गाजियाबाद, नोएडा से चैतन्य को ट्रांसफर लेना है गाजियाबाद में। तो पहले क्या सीन होता था, पहले ये सीन होता था कि जाएंगे ऑफिसर को चैतन्य देंगे आराम से 2 लाख रुपीज और चैतन्य का ट्रांसफर हो जाएगा। 2 लाख में कम बता रहा हूं, ठीक है, ज्यादा देते थे, और चैतन्य का ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, अब है गाइडलाइंस, ठीक है। गाइडलाइंस में क्या है, देयर आर प्रॉपर प्रोसीजर, सारे प्रोसीजर है, पॉइंट्स है, और बेस्ड ऑन ईच पॉइंट्स द टीचर्स आर गेटिंग the points based on each points, based on each parameters, teachers are being judged and teachers are being given awarded point, और उस पॉइंट के बेसिस पे अब ट्रांसफर होगा, ठीक है। अब जो ट्रांसफर होना है उस पॉइंट के बेसिस पे होगा। इसमें पता है एक इशू भी हुआ था, देयर वाज वन इशू आल्सो, क्योंकि योगी जो है, योगी आदित्यनाथ, वो अपने मन का सुनते हैं, ठीक है, वो दूसरे लोगों की उतना ज्यादा सुनते नहीं है। तो बहुत सारे मिनिस्टर्स गए योगी आदित्यनाथ के पास और उन्होंने बोला कि भाई साहब आपने तो ये सिस्टम ला दिया है, सिस्टम तो बहुत बढ़िया है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, करप्शन हट जाएगा, बट व्हाट अबाउट अस, हमारे लोग तो ये हो जाएंगे ना, परेशान हो जाएंगे। तो योगी जी ने बोला कि चलो यार आप भी खुश रह लो, ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है, सब लोग खुश रहो, ओके। सो खुश रहने के चक्कर में इन्होंने क्या बोला, योगी जी ने बोला कि चलो हम एक कोटा बना देते हैं अलग से, मिनिस्टर कोटा। योगी जी ने यहाँ पे कर दिया गेम, लगा दिया एक मिनिस्टर कोटा, दैट चलो एक मिनिस्टर कोटा है, मिनिस्टर कोटा के बेसिस पे अब उनको पॉइंट मिलेगा, और जिसका जैसा हाईएस्ट पॉइंट रहेगा एंड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स द कंसर्न्ड पर्सन विल गेट द ट्रांसफर या फिर व्हाटएवर सर्विसेज दैट दे आर आस्किंग फॉर, ठीक है, उस पर्टिकुलर कोटा के बेसिस पे सारी चीजें दी जाए, राइट। सो दिस इज व्हाट द योगी आदित्यनाथ हैज डन। अब नाउ देखो इसमें एक चीज क्या है, मिनिस्टर तो वो सिर्फ एक आदमी के लिए तो है नहीं, मिनिस्टर तो सबके लिए है। तो सपोज करो अगर उसके 3-4 खास लोग अगर चले गए कि भाई साहब आप मेरा करा दो, मेरा करा दो, मेरा करा दो, तो मिनिस्टर तो पहले क्या होता था, पहले पैसा दो हो जाएगा, लेकिन अभी तो मिनिस्टर किसी एक को ही रिकमेंड कर सकता है। There is a fixed quota with respect to minister also. Minister can also recommend only one person, only one candidate. All right. So this is also one of the thing. तो अगर एक को करेगा तो मिनिस्टर साहब तो कर नहीं पाएंगे किसी को फिर, क्योंकि एक को खुशी करने के चक्कर में बाकी सबको वो नाराज कर बैठेंगे, right? So this is the thing. तो ये बहुत बढ़िया, this is one of the best system, and this should be framed and this should be used by rest of the government also. बाकी के गवर्नमेंट में भी होना चाहिए, राइट। सो ये एक बढ़िया सिस्टम है। सो दीज आर द रिलेटेड, और ये सारी चीजें ना साइट्स पे डली हुई है,
okay, related to this particular guidelines and all. Each and everything is available on the website. तो ये काफी अच्छा initiative है by the UP government, okay, to promote the transparency and to ensure the effective governance in the system. All right. So this is the thing. So then what are the other things that you have to use the you have to ensure the probity in the governance with the help, with the support from our bodies like CVC, Vigilance Commission, bodies like Information Commission, bodies like Lokpal, Lok Ayukt, है ना. I hope I'm not sounding like an alien. आपने पढ़ा होगा ये सब चीजें, ठीक है. तो लोकपाल, लोक आयुक्त, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ा है ना. इज दिस क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर है सबको? चलो, वेरी गुड. ओके, तो ये सारी चीजें हैं. इन सारी चीजों के हेल्प से, विद द सपोर्ट फ्रॉम दीज पर्संस, यू विल बी एबल टू एंश्योर द प्रोबिटी इन योर सिस्टम. ये सारे लोग काफी हेल्पफुल होंगे, काफी सपोर्टिव होंगे प्रोबिटी को एंश्योर करने के लिए. ओके, इफेक्टिव फीडबैक इज नेसेसरी. कल भी हमने देखा था ना, जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे तो क्या होगा, राइट. सो इफेक्टिव फीडबैक एंड सजेशंस, इट इज नेसेसरी टू एंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सर्विसेज. ठीक है, फीडबैक देना चाहिए आप. तो देखो, पोर्टल पे ना सारी चीजें अपडेटेड होती है. ओके, so whatever things which are updated on the portal now, you are supposed to follow that. सारी चीजें क्या होनी चाहिए, follow होनी चाहिए. And the public, the common masses, they should also provide the feedback. तो एक feedback form होना चाहिए. कोई भी bureaucrat जब जाते हैं, okay, transfer जब होता है किसी भी bureaucrat का, so their feedback should be taken from all the local administrators. Local administration as in gram sabha, municipality, ने कैसा काम करा है, सो दैट उसके बेसिस पे आप उनका जो एनुअल ACR जो होता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, आप लोग जब ज्वाइन कर जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, तो आप लोग से भी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनवाया जाएगा. तो उनका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होगा, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट ओनली, उस पर्टिकुलर चीजों पे ही होगी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट. ओके, सो दिस इज द थिंग. So ये होना चाहिए. Okay, so these are the measures, these are the measures required to ensure the corruption free state, or you can say the probity in your governance system. ठीक है, तो ये सारे measures हैं. कुछ और measures देखते हैं. अब देखो, politicians में भी तो हम देख लें जरा कि politicians में probity होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए. देखो, what are the steps which is required to inculcate probity among the politicians? ऐसा कौन सा तरीका होना चाहिए, क्या क्या तरीके होने चाहिए? first thing first, there should be mandatory declaration of asset, और ये होता भी है, mandatory declaration होता भी है asset का. I'm not visible, क्या बात कर रहे हैं? Am I visible now, please? अच्छा कन्या, ओके, चलो ओके. सो देखो, जब आप इलेक्शन लड़ते हो, इलेक्शन कंडक्ट करते हो, तो इलेक्शन कंडक्ट करने से पहले फॉर्म भरा जाता है ना. उस पर नॉमिनेशन फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, राइट. इस नॉमिनेशन फॉर्म में क्या होता है, that the politician or the person who is contesting the election has to give the details about their assets, about their liabilities and all the things. That is the Janma Kundli.
यू कैन से नॉमिनेशन फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली जन्म कुंडली होता है, वो सारी चीजों के बारे में होता है. सो देयर शुड बी, इफ यू वांट टू एंश्योर द प्रोबेटी अमंग द पॉलिटिशियंस, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट देयर शुड बी द मैंडेटरी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड बिजनेस ऑफ द पॉलिटिशियन. और सिर्फ यही नहीं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके साथ भी होना चाहिए. उनके एसेट्स को भी आपको डिक्लेयर करना होगा. दैट शुड बी द मैंडेट एंड दैट शुड बी मैंडेटरी इन नेचर. ओके, द एसेट्स, द लायबिलिटीज, द बिजनेस ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स, ऑफ देयर रिलेटिव्स शुड आल्सो बी डिक्लेयर्ड. ठीक है, वो भी होनी चाहिए, उनके चीजों को भी होने चाहिए. एंड यू नो प्रॉपर ऑडिट हैज टू बी डन. ठीक है, ऑडिट होनी चाहिए इन सारी चीजों की. सो उड़ीसा के पहले वंस अपॉन अ टाइम द चीफ मिनिस्टर थे जो उड़ीसा के, is is one of the poorest in terms of assets. ठीक है, ये मानिक सरकार was the chief minister and he was one of the poorest chief minister. ठीक है, sorry, of त्रिपुरा. Okay, ये he was one of the poorest chief minister और एकदम शो ऑफ नहीं करते थे, बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करते थे. ठीक है, एकदम सिंपल लिविंग, जिसको हम बोलते हैं ना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, वही पर्टिकुलरली चीज थी मनिक सरकार के अंदर में, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग. एंड आपका इंटरनल सिक्योरिटी जब होगा गाइस, तब आप पढ़ोगे द जॉब डन बाय मनिक सरकार इन रिमूविंग यू नो द सादा जीवन उच्च विचार. करेक्ट अनिल जैन. ओके, so then you will come to know about that his action in removing northeast insurgency. अब तो मींस त्रिपुरा में स्पेशली इंसर्जेंसी तो है ही नहीं, पहले एक टाइम में काफी खतरनाक रहा करता था. once upon a time, do you know one thing, once upon a time people of the northeast region they don't used to go for the flag hosting क्योंकि नहीं होते थे, इंसर्जेंसी इतनी ज्यादा थी. but now it is completely free. Tripura at least is completely free from insurgency. And the credit must be given, must be we have to give due credit and the due respect as well to Manik Sarkar. इन्होंने ही ये सारी काम करे. So he has ensured that, इन्होंने ये particularly ensure करा. ये सारे examples आपको डालने हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है. ठीक है, देखो सी, जब भी आप आंसर लिखते हो ना गाइस, दीपक को भी मैंने बोला है ये सारी चीजें, तो आप जब आंसर लिखते हो तब आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स देना है. रिलीजियन के बारे में कोट कर सकते हो आप, अच्छी चीज है. ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग. अनदर एग्जांपल दैट यू कैन गिव इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटर, प्रेजेंट डे एडमिनिस्ट्रेटर. इन सारी चीजों को आप एग्जांपल्स के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो. क्या हो गया वीडियो को? चलो अब तो आ रहा है ना? ठीक है. सो यू हैव टू गिव द एग्जांपल, राइट? एग्जांपल देते रहना, बिकॉज एग्जांपल क्या करता है ना, आपके मार्क्स को इनहेंस करता है. ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा फोकस करना एडमिनिस्ट्रेटर्स के एग्जांपल पे. तो 2-3 एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जैसे दुर्गा शक्ति नागपाल मैडम है, अशोक खेमका सर है, शिवदीप वमन लांडे करके हैं, मनु महाराज करके हैं. ठीक है, संयुक्ता पराशर करके हैं. ओके, इन सबका नाम तो सुना ही होगा आप सबने. ठीक है, तो इन सारे लोगों के ना एग्जांपल्स देना, एग्जांपल्स देने से काफी मार्क्स आते हैं. कुछ का सुना है, बाकी सबका नहीं सुना है. संयुक्ता पराशर, शी इज अ वेरी फाइनेस्ट एंड माय फेवरेट आईपीएस ऑफिसर, वेरी फाइनेस्ट. इन्होंने अभी तक, वेरी सीनियर ऑफिसर, और इन्होंने अभी तक अराउंड 17 टेररिस्ट को इन्होंने मार गिराया. शी इज वेरी फाइनेस्ट ऑफिसर ऑफ आसाम कैडर. तो इनके बारे में सुनना, एक बार पढ़ना जरा इनके बारे में. ठीक है, सो दिस इज द थिंग, वेरी फाइनेस्ट ऑफिसर. एंड इन लोगों ने ही इंश्योर करके रखा है प्रोबिटी को हमारे इस देश में. ओके, राइट. सो दिस इज द थिंग. सो ये पहला चीज है, ये जो होना ही चाहिए पॉलिटिशियंस में. ओके, सो दैट यू विल बी एबल टू इंश्योर द प्रोबिटी इन द पॉलिटिशियन, राइट? सो एक डेडिकेटेड यूनिट होनी चाहिए, एक डेडिकेटेड टीम होनी चाहिए.
Okay, so जो देखेगी, those who will look after whether the politicians are also violating or whether the politicians are following code of ethics and code of conduct or not. एक हमारे पास एक डेडिकेटेड फंक्शनिंग टीम होनी चाहिए जो स्पेशली सिर्फ इसी काम में लगी रहेगी। और बेसिकली मैं बताऊं, एक नया सिस्टम क्रिएट करने से अच्छा है द रेस्पेक्टिव स्पीकर, ओके, और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोलने से ना सारे लोग आ जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। सो मींस लेजिस्लेचर, ऑल द लेजिस्लेचर्स कम्स अंडर द इफ यू विल से द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, एंड दिस इज द जॉब ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, right? Presiding officers, they are basically the guardian inside the parliament or inside the legislature, right? So this should be, and the presiding officers should be accountable and should be motivated enough to look after the code of ethics and the code of conduct of all the politicians. सारे politician के code of conduct को देखे। See, इसमें एक चीज है, and why I am making this statement, there is a logic behind this, that if you are the speaker, if you are appointed as the speaker of Lok Sabha, for example, speaker बनते हो आप लोक सभा के, ठीक है। So you have the power and you have the thing, you can here, you can resign, आप resign कर सकते हो from your respective party, ठीक है। पार्टी से आप रिजाइन कर सकते हो और आपकी नहीं जाएगी, आपका जो लेजिस्लेशन होगा, आपकी जो सीट होगी वो नहीं जाएगी। जनरली इफ यू आर इलेक्टेड फ्रॉम वन पार्टी, फॉर एग्जांपल बीजेपी, एंड यू हैव ज्वाइंड द कांग्रेस एंड you are leaving BJP, it shows what? It means that your seat in the legislature will also become vacant, right? So that is the thing. But if you are the speaker and then you are leaving the party, then your seat won't go vacant, ठीक है, फिर वो वैकेंट नहीं होगा, यू विल रिमेन द स्पीकर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई एंड व्हाई दिस अरेंजमेंट हैज बीन डन, और ऐसा अरेंजमेंट क्यों बना गया है, क्यों किया गया है? दिस अरेंजमेंट हैज बीन मेड सो दैट द स्पीकर और द प्रिसाइडिंग ऑफिसर विल बी एबल टू एंश्योर दैट एवरीवन फॉल्स इन लाइन एंड एवरीवन इज वर्किंग प्रॉपर्ली। इसलिए पर्टिकुलरली ये अरेंजमेंट बनाया गया है, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस शुड बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर to look after the code of ethics and the code of conduct of rest of the politicians, those who are the legislators, okay? जो legislature है उनके code of ethics को और code of conduct की responsibility किनके ऊपर होनी चाहिए? inside the parliament, inside the house as well as the outside the house, क्योंकि वो inside the house भी तो speaker रहते हैं, outside the house भी तो speaker रहते हैं, right? So that's why this should be done, ऐसा होना चाहिए, okay? Parliamentary conduct ethics must be taught to MPs, सारे MP को कंडक्ट पढ़ाए जाने चाहिए, ठीक है। सो पहले के टाइम में पता है क्या होता था? देखो, पार्लियामेंट चलते हुए हम सब ने देखा है, ठीक है। पहले के जमाने में कुर्सी फेंक फेंक के मारा करते थे, ठीक है। ऐसा लगता था जैसे ये पार्लियामेंट नहीं WWE का अखाड़ा है, ठीक है। दिस वाज द सिनेरियो, ओके। कुर्सियां फेंक करके एक दूसरे के ऊपर मारे जा रहे हैं, ठीक है। WWE में जैसे करते हैं ना, बटिस्टा, रोमन रेंज, अंडरटेकर, ये सारे लोग क्या करते थे, राइट? उसी तरीके से ये सारे लोग भी किया करते थे, ओके, एमपीज हमारे, ऑलराइट। तो हाँ, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में अभी भी होता है, इंडिया के पार्लियामेंट में भी तो हुआ था ना कुछ दिन पहले, राज्यसभा में स्पेशली डेप्यूटी स्पीकर के साथ किस तरीके से मिसबिहेव किया गया था बाय द ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स, वी ऑल आर अवेयर, है ना? सो दैट वाज वेरी अनफॉर्चूनेट। अब कुछ भी हो जाए, आपको ऐसा नहीं करना है। अब ये लोग छोटी छोटी सी बातों पे इतना झगड़ा करते हैं, बताओ, ठीक है। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने इतना बढ़िया, इतना ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। डिस्कशंस तो उसमें भी होते थे, डिबेट उसमें भी होते थे, उसमें भी कितने सारे अमेंडमेंट आए, ठीक है। बट द थिंग इज व्हाट, कोई प्रॉब्लम हुआ, उस तरीके का क्योस हुआ है क्या? किसी ने सुना उस तरीके का क्योस? नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना, राइट? सो दैट वाज द सीन, दैट वाज द सिचुएशन, ये हुआ पर्टिकुलरली, राइट? सो दिस हैज टू बी डन। तो पहले ऐसा होता था, एक बार हमारे पार्लियामेंट क्या हुआ, पेपर स्प्रे एक दूसरे पे छिड़कने लग गए। नाउ दे आर द रिप्रेजेंटेटिव। भाई साहब, आप रिप्रेजेंटेटिव हो लोगों के विल को, यू आर सिंपली रिप्रेजेंटिंग पीपल्स विल, राइट? और आप इस तरीके की बचकानी हरकतें कर रहे हो,
right? So इसलिए तो whatever code of conduct which is available, that has to be given and that should be provided and that should be taught to our respective legislatures. Okay, so ये दूसरा चीज हो गया. पार्लियामेंट्री एथिक्स जो है वो हमारा ये होना चाहिए, right? And parliamentary ethics should also be taught related to the disruptions. बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा पार्लियामेंट डिसरप्ट चलता है ना? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एथिक्स में भी इससे रिलेटेड, तो आप इन सारे एग्जांपल्स को, ये सारी चीजों को आप कोट कर सकते हैं. ओके, बिकॉज फ्रीक्वेंट डिसरप्शंस हैज नॉट शुड नॉट बी डन, क्योंकि एक दिन के लेजिस्लेशन का चलाने में बहुत टैक्स पेयर्स का बहुत ज्यादा पैसा जाता है, राइट? सो दैट इज द थिंग एंड दैट शुड नॉट बी डन. ये पर्टिकुलर चीजें नहीं होना चाहिए. ओके, illegal expenditure during elections, that is the root cause of the corruption among politicians. अब एक बात बताओ कि कोई इलेक्शन जीतने के लिए, किसी ने इलेक्शन जीतने के लिए 10 करोड़ रुपीस खर्चा कर दिया है अपने पॉकेट से, तो नेचुरली वो यही चाहेगा ना कि वापस भी हम ले वसूल करें, हम अपना 10 करोड़ के बजाय हम 50 करोड़ वसूल करें, सो दैट आने वाले 3 इलेक्शन में हम जीत पाएंगे. Isn't it? So illegal expenditure is the job, and that's why this particular thing is in the news, that whether the election should be state funded or not. Election state funded होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? State funded means what? Public exchequer का पैसा से. Political parties should not invest the money. Individual member should not invest the money. Rather, it's the state who should divide equally the things equally, the amount to all the political parties to contest the election. ऐसा होना चाहिए, right? This is the debate. और ये ethical issue जो है, this is what that we will discuss tomorrow. ये सारी चीजें हम discuss करेंगे कल के lecture में. Okay, so illegal expenditure जो होता है, that is the major cause, that is the root cause of corruption among politicians. ठीक है? So this is the thing, because obviously बात है ना, कोई अगर इतना ज्यादा, एक बात होता है ना, कोई भी इतना ज्यादा खर्चा करेगा तो निकलेगा ही. देखो पहले के जमाने में एडमिनिस्ट्रेशन जो था हमारा, why our administration used to be corrupt, है ना? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन पहले इतना करप्ट क्यों हुआ करता था? आज भी है. क्यों? रीजन क्या है? द रीजन इज दैट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल यूज्ड टू गिव 20 लाख रुपीस, 50 lakh rupees to enter into the service. So people used to get appointed not by the merit, rather by the money. 50 लाख रुपए को वसूलना भी तो चाहेगा ना. If I am not able, I have spent so much amount of money. So ये एक particularly situation थी. So ये illegal expenditure नहीं होना चाहिए, partial state funded है, should be there. और इसमें क्या क्या legalities है, tomorrow we will discuss it. Regarding the same things that we can do in order to inculcate probity among the politicians. The few things that we can do is that we can also provide short duration training period. जैसे हमारे सिविल्स का होता है ना लवासना में, क्या हो गया? ये ऑन कर रहा हूं मैं, बार-बार ऑफ हो जा रहा है. ठीक, just a minute guys. बार-बार ऑफ हो जा रहा है. ठीक है. सी आप सबका भी तो होना है लवासना में ट्रेनिंग, राइट? The thing is what, just like the training of the civil servant, just like the training of the bureaucrats, the politicians should also be trained. इनको भी थोड़ा एथिकल ट्रेनिंग मिलना चाहिए, है कि नहीं? ओके, इसके बारे में कल आप लोग थोड़ा पढ़ करके आना, थोड़ा अपने पॉइंट्स कलेक्ट करके आना. टुमारो वी विल डिस्कस रिलेटेड टू इट. ऑलराइट, कल हम इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे. टुमारो वी विल, कल के लिए हमारा टॉपिक क्या रहेगा?
Okay, tomorrow we will discuss about the corruption and other aspects. Okay, so short duration training जो है, short duration training should be provided to the politicians, and via these methods, इन सारे methods को use करके we will be able to ensure probity among politicians. ठीक है, with the help of these particular measures, इन सारे measures को use करके. All right, so I hope this is clear to you guys. आज के लिए हम यहीं पे रखते हैं. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट करप्शन, जिसमें करप्शन में हम देखेंगे कि करप्शन क्या है, करप्शन होता क्यों है, रीजंस क्या है, कौटिल्य ने क्या बोला है, कौटिल्यास थ्योरी वी विल डिस्कस, व्हाट आर द सजेशंस प्रोवाइडेड बाय द कौटिल्य, दैट आल्सो वी विल डिस्कस. तो करप्शन करके एक लास्ट टॉपिक है जो हमारा बच गया है, दैट वी विल डिस्कस टुमारो. एट द सेम टाइम वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. कल हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे. एंड ऑन दैट नोट टुमारो विल बी द लास्ट क्लास. कल हमारा लास्ट क्लास होगा फॉर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. ओके, और कल आप लोग पूरी तरीके से क्या बन जाओगे, एथिकल बन जाओगे. ठीक है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस, काफी एथिकल हो चुके होंगे कल पूरी तरीके से 100% एथिकल ना. ठीक है, 100% एथिकल बन जाओगे, राइट. सो बहुत अच्छी बात है. एंड आई एम श्योर दैट दिस पर्टिकुलर प्रोबिटी ऑफ योर्स विल हेल्प यू इन बिकमिंग अ गुड ब्यूरोक्रेट आल्सो टू यू गाइस. ठीक है, सो कल थोड़ा पढ़ करके आना, बताना आप मुझे, आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि पॉलिटिशियंस के ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या होना, थोड़ा पढ़ना. दैट जो स्टेट फंडेड इलेक्शन जो है वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस. ट्राई टू रिवाइज द थिंग. So only one topic is left that we will discuss tomorrow. All right, so done for today. Thank you, see you tomorrow. Thank you all.